السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اور میں ہوں نصحت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد عام انتخابات، بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان اپنی دونوں سیٹیں جیتنی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش شفیق الرحمان نے بھی اپنی سیٹ جیت لی ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نیشنلسٹ پارٹی کو واضح برتری مل گئی ہے۔ آخری اطلاع تک بی این پی 75 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ جماعت اسلامی 23 سیٹیں حاصل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ بنگلہ دیش الیکشن میں 3 آزاد امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کر لی۔ طلباء تحریک کی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کو بھی 1 سیٹ مل گئی ہے۔ بنگلہ دیش جاتیہ پارٹی اور اسلامی آندولن بنگلہ دیش نے بھی 1 سیٹ اپنے نام کر لی۔ ناظرین، شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد بنگلہ دیش میں پہلے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے 17 سال بعد انتخابات میں حصہ لیا۔ امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان ملکی نظام کی تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے منشور میں جمہوری حکمرانی اولین ترجیح قرار دی گئی ہے، جبکہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ بھی ان کے ٹاپ ایجنڈوں کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش کی مذہبی جماعت نے اقتدار میں آ کر ملک میں سیاسی و معاشی اصلاحات کا عزم کیا ہے۔ تعلیم و صحت کے منصوبے، میرٹ پر روزگار کی فراہمی، فلاحی نظام، صنعتی اور زرعی ترقی، قومی اتحاد کی تشکیل کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے، خواتین اور بچوں کا تحفظ بھی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے منشور کا حصہ ہے، جبکہ کمزور طبقے سمیت تمام شہریوں کے حقوق اور آزاد عدلیہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا ظالمانہ دور، پاکستان دشمنی میں اپنے ہی لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے۔ بی این پی رہنما خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈالا، جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگائی، کئی رہنماؤں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی۔ جون 2024 میں کوٹا پالیسی کے خلاف طلباء تحریک کا آغاز ہوا، جس نے حسینہ واجد کے تاریک دور کا خاتمہ کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیاسی جماعتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، پاکستان مخالفت میں اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ حسینہ واجد کی حکمرانی بنگلہ دیش کی تاریخ کا سیاہ دور تھا۔ حسینہ واجد نے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائیں، سابق وزیر اعظم اور بی این پی رہنما خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈالا۔ انہوں نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش پر پابندی لگائی، کئی رہنماؤں کو بے گناہ پھانسی پر لٹکایا، جبکہ کئی کو پابند سلاسل رکھا گیا۔ حسینہ واجد 1.5 عشرے سے زائد بنگلہ دیش میں برسر اقتدار رہیں۔ 2009 سے 2024 تک ہر بار دھاندلی کرا کر انتخابات میں کامیاب ہوتی رہیں۔ پھر جون 2024 میں ہوا نے رخ بدلا، نوکریوں میں کوٹے کے خلاف بنگلہ دیش کے طلباء کی تحریک شروع ہوئی۔ حکومت کی سختی پر عوامی طاقت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ جولائی 2024 میں اہم طلباء رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 4 اگست 2024 کو ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں شدید کریک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا، 1400 سے زائد بے گناہ مارے گئے۔ حسینہ واجد کو 17 نومبر 2025 میں بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبونل میں انسانیت کے خلاف جرائم کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی۔ For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. تاہم وہ بھارت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں اور اب وہیں مقیم ہیں۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار ان کی جماعت کے بغیر انتخابات ہو رہے ہیں۔
अभी आपको बताएंगे बांग्ला देश के जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर धमाका, 3 अफराद जख्मी हो गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के जिला गोपालगंज में रेशमा इंटरनेशनल स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर धमाका खेज मवाद फेंका गया। नामालूम अफराद ने नहर के पास से कॉकटेल नुमा बम फेंका है। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार और 14 साला बच्ची जख्मी हुई है। बांग्लादेशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर कब्जे और बैलेट बॉक्सेस की छीना झपटी की तारीख को भूलना होगा। बांग्लादेश की आम इंतखाबात में वोट चोरी के इल्जामात। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक बीएनपी ने जमात इस्लामी और कारकुनान के खिलाफ 127 शिकायत दर्ज करवा दी। बीएनपी ने जमात इस्लामी पर वोट खरीदने, जाली वोट डालने और वोटर्स को धमकियां देने के इल्जामात लगाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के इत्तेहादी नेशनल सिटीजन पार्टी ने भी बीएनपी पर पोलिंग स्टेशन में खौफ व हिरास फैलाने का इल्जाम आयद किया। ढाका पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। पाकिस्तान रंग, ज़बान और सकाफतों का हसीन इम्तजाज। ये मुल्क तब मजबूत बनता है जब हम एक दूसरे को समझने, कबूल करने और बर्दाश्त करने का जज्बा रखते हैं। बर्दाश्त सिर्फ इख्तिलाफ़े राय बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने, एहतराम देने और दूसरों की बात सुनने का नाम है। बदज़ुबानी, अदम बर्दाश्त और नफरत सिर्फ फासले बढ़ाती है, जबकि रवादारी हमें एक कौम बनाती है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें, इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद, नफरत की बजाय मोहब्बत और तक़सीम की बजाय बर्दाश्त। रवादारी अपनाएं, पाकिस्तान को जोड़ें। हर लम्हे की ताज़ा तरीन कहानी, हर सवाल का खरा जवाब। खबर वही जो हकीकत हो, बात वही जो सच्चाई पर मबनी हो। पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर से लेकर यूरोप के बाजारों तक, हम हैं आपकी आवाज। जब वक्त चीख रहा हो, सच दबाया जा रहा हो, आंधी हो या तूफान, सच की राह से हम नहीं हटते। लफ्जों से नहीं, हकीकत से बोलते हैं। हम बनेंगे आपकी ताकत, आपकी आवाज। लम्हा लम्हा सच की तलाश, हम हैं टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएं, बांग्लादेश के आम इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। जमात इस्लामी का दूसरा नंबर, ताहम कई घंटे गुजरने के बावजूद बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का ऐलान न कर सकी। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे बिलाल गौरी से। जी बिलाल गौरी, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। बांग्लादेश में जो दारुल हुकूमत है ढाका, यहाँ में तकरीबन 1 बज चुका है, लेकिन अभी तक जो इंतखाबी नताइज हैं उसके हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। मुख्तलिफ जमातों की तरफ से दावे तो ज़रूर किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब हमारी बात हुई बीएनपी के रहनुमाओं से, तो उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि बीएनपी अब तक 177 नशिस्तें जो है वो जीत चुकी है और जमात इस्लामी जो है वो 62 नशिस्तें जीत चुकी है। ये बीएनपी का दावा है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का। जबकि इसके बरक्स अगर जमात इस्लामी वालों की सुने तो उनका दावा है कि जमात इस्लामी 67 सीटें जीत चुकी है और बीएनपी जो है वो उसने 64 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ से अभी तक जो हतमी नताइज हैं उनका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अब तक के जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक बीएनपी को वाज़ेह सबकत हासिल है। बिलाल गौरी, टीवी टुडे, ढाका। बिलाल गौरी हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, बानी पीटीआई ने बताया दाईं आंख से 85% नजर नहीं आता। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफ्दर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर 7 सफ़ाहात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई मुलाकात के दौरान बर वक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। बानी की दाईं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज का अमल शुरू किया गया। बानी के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करके
इंजेक्शन लगाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% नजर आता है। बानी ने बताया, 3 माह मुझे बिनाई कम होने का इशू दरपेश है, जबकि जेल हुकाम ने उसको संजीदा लिया ही नहीं है, ना ही इसको एड्रेस करने की कोशिश की। 5 माह से वकला से मुलाकात नहीं हुई है। बानी का बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात न होने पर मायूसी का इजहार। बताया, गर्मियों में सिर्फ एक कोल्ड बॉक्स मुहैया किया गया, जो हमेशा मौसर नहीं होता है। गर्मियों में 2 से 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, माहिर अमराज चश्म आंख का मुआयना करेगा और तिब्बी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई से बच्चों की 16 फरवरी से पहले बात कराने की दी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेर इल्तिवा रखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी से मुतालिक रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। बोले, बानी ने जेल में हिफाजती इक़दामात, खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी पीटीआई का मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट हमारी हैं। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सलमान सफदर की तारीफ। वहां अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने बयान में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई का कहना था कि आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना शुरू होगा। हमारे मुतालिबात हम आज धरने में रखेंगे और मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने कहा कि मुतालिबात तस्लीम करने में खुदा न खास्ता कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत धरना देगी, जिसके लिए तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। किसी को आवाम की इज्जत से खेलने नहीं दूंगी। मियां वाली ने 4 साल हुकूमत की, एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट न देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मियां वाली में जलसा-ए-आम से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मियां वाली में लॉ, मेडिकल और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, माजी में मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। मियां वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। रोजगार के लिए किसानों में 5-5 एकड़ जमीन तकसीम करेंगे। ज़रई जमीन को 25 साल की लीज पर देंगे। रमजान में 40 लाख मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वो खामोश है मगर उसकी खामोशी में एक चीख छुपी है। तशद्दुद सिर्फ जिस्म पर नहीं, अल्फाज, रवैयों और माशरती नाइंसाफी में भी होता है। लेकिन अब कहानी बदल रही है। वो औरत जो कल चुप थी आज बोल रही है, खड़ी है और अपने हक के लिए लड़ रही है। यह वक्त है खामोशी तोड़ने का, मुतशद्दिद सोच के खिलाफ जंग लड़ने का, क्योंकि जब औरत महफूज होगी तो मुआशरा मजबूत होगा। ये दर्द खामोश नहीं रहा, अब ये बदलता बयानिया है जो कहता है इज्जत, बराबरी और एहतराम हर औरत का हक है। औरत कमजोर नहीं, उसकी आवाज ही उसकी ताकत है। नेकी छुपाओ जैसे तुम गुनाह छुपाते हो।
जब तक हम खामोश रहेंगे मसाइल बढ़ते रहेंगे। वक्त आ गया है कि हम आवाज बुलंद करें। गुर्बत, तालीम की कमी और नाइंसाफी ये सिर्फ खबरें नहीं, हमारी हकीकतें हैं। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो कल का पाकिस्तान कैसा होगा? हम पहुंचेंगे मसाइल की जड़ तक, करेंगे वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल का पर्दाचार। तहकीक की रोशनी में हम एक बेहतर पाकिस्तान की तामीर के लिए करेंगे राहें मुतय्यन। प्रोग्राम पीपल्स में जानिए मसाइल में घिरी कौम का अहवाल। हम बनेंगे आवाम की आवाज। पीपल्स, जहां सवालात जन्म लेते हैं और जवाबात की तलाश शुरू होती है। हर जुमेरात से हफ्ता रात 8:03 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। तुम में से जो शख्स मरने से पहले अपने आप को मौत के लिए तैयार कर ले वो कामयाब है। पाकिस्तान के दही इलाके खूबसूरत मगर मुश्किलात से भरपूर, जहां अब भी लाखों लोग साफ बैतुल खला और बुनियादी सफाई की सहूलतों से महरूम हैं। खुले मुकामात पर रफाए हाजत न सिर्फ माहौल को आलूदा करती है बल्कि बीमारियों जैसे हैजा, डायरिया और टाइफाइड के फैलाव का सबब बनती है। सफाई सिर्फ शहरी इलाकों का मसला नहीं, ये ईमान का हिस्सा है और हर इंसान का बुनियादी हक भी। आए दही पाकिस्तान में सफाई का पैगाम आम करें। साफ बैतुल खला, सेहतमंद जिंदगी, यही है असल तरक्की। सियासत के दाव पेच हों या सियासतदानों की कलाबाजियां, बैनुल-अक़वामी मामलात हों या मकामी मसाइल, सवाल हम उठाएंगे। गली मोहल्लों से ऐवानों तक, हर खबर के पीछे की खबर, हर पहलू का गहरा तज्जिया। तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ होता है सच का सामना। टुडे विद मियां हबीब, बात वही जो जरूरी हो। पीर से बुध रात 10:03 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। जिस कौम ने जहाज छोड़ा वो जलील हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे लाहौर के अहम तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट अलगनी गार्डन फेज 7 के अवामी 3 मरला प्लॉट्स बैलेटिंग की तकरीब का इनेकाद टाउन फेज 7 पर फिजा मकाम पर किया गया, जिसमें इंतजामिया ने 5 मरला और जाविया की जल्द बैलेटिंग का भी अज़म दोहराया। अलगनी गार्डन फेज 7 के तकमीले अहदे वफा के नाम से मुनक्किदा तकरीब में CEO मुनीब अवान समेत डायरेक्टर्स, शहर के अहम सेल्स पार्टनर्स और मालिकान ने शिरकत की है। CEO अलगनी गार्डन मुनीब अवान समेत दीगर ने 3 मरला अवामी प्लॉट्स की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अलगनी गार्डन फेज 7 मशरकी लाहौर की प्राइम लोकेशन पर वाक़या अवामी प्लॉट्स की बैलेटिंग का एक फर्ज पूरा कर दिया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम डेवलपमेंट और तमीराती काम और 5 मरला और जाविया प्रोजेक्ट में मुकम्मल कर लेंगे। CEO मुनीब अवान ने कहा है कि अलगनी ग्रुप अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में मिलियन ट्री प्रोजेक्ट का आगाज करते हुए एक घर एक दरख्त मंसूबे से रियल एस्टेट मार्केट में अहम तरीन संग मील साबित होगा। माशाल्लाह जी, तकमीले अहदे वफा का दिन है। माशाल्लाह 1 साल पहले जो अलगनी गार्डन फेज 7 ने वादा किया था उसको वक्त से पहले वफा कर रहे हैं। बैलेटिंग वक्त से पहले हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन दोस्तों ने इसमें हिस्सा लिया था उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अलगनी गार्डन टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह जैसे वादा किया गया था कि पोजेशन भी वक्त से पहले दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ माह में वक्त से पहले पोजेशन भी दिया जाएगा इसका। लीड्स यूनिवर्सिटी ने आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज एक सेमिनार का इनेकाद किया है वुमेन पावर, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए हैं और लीड्स यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द वुमेन एजुकेशन एंड फॉर द वुमेन बिजनेस। तो इसको IT फील्ड के साथ मर्ज करके जब हम नेक्स्ट जनरेशन को भी गाइड करेंगे और वो और जो सीनियर जनरेशन है वो मिलकर एक अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं।
دوسری جانب لیڈز وومن امپاورمنٹ سینٹر کے زیر اہتمام لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خواتین کی کاروباری ترقی کے موضوع پر ایک اہم سیمینار منعقد ہوا۔ ویمنز انٹرپرینیورشپ ان پاکستان چیلنجز، مواقع اور پالیسی راستے کے عنوان سے ہونے والی اس نشست میں ماہرین تعلیم، کاروباری شخصیات اور پالیسی سازوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی نے کی، جبکہ لاہور چیمبر آف کامرس سے خواتین کی نمائندہ آمنہ رندھاوا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان مقررین ڈاکٹر مشتاق مانکر، ڈاکٹر عبداللہ یاسر، ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل، ڈاکٹر سائمہ اسما، فائزہ سلمان، نادیہ اشتیاق اور ڈاکٹر سدرا رسول نے خواتین کو درپیش کاروباری چیلنجز، سرمایہ تک رسائی، پالیسی معاونت اور سماجی رکاوٹوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں خواتین کی معاشی شمولیت پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے اور اس ضمن میں تعلیمی اداروں، کاروباری برادری اور حکومتی سطح پر مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیمینار کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی تجاویز کو آگے بڑھایا جائے گا اور ایسے مکالموں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ آج ہم لاہور چیمبر آف کامرس میں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ لاہور لیڈ یونیورسٹی کے کولیبریشن کے ساتھ ایک ہم نے سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ وومن امپاورمنٹ اور وومن کو انٹرپرینورشپ پہ لے کے آنا۔ اس میں ویریس واکس آف لائف کے لوگوں نے شرکت کی اور جس کے کلچرل پرسپیکٹیو اور اکنامک پرسپیکٹیو ان سب کو ڈسکس کیا ہم نے۔ آج میں بہت خوش ہوں اتنی ساری ویمن کی اسٹرینتھ دے کے۔ لیڈز یونیورسٹی کے ساتھ میں بہت اچھا کولیبریٹیو سیشن ہوا ہمارا، جس میں خواتین کے انٹرپرینیورشپ پہ بات ہو رہی تھی۔ جی یہ بڑا ایک اہم یہاں پہ راؤنڈ ٹیبل میں نے اٹینڈ کی ہے، لیڈز یونیورسٹی کی طرف سے اس کو ہوسٹ کیا گیا تھا اور یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو خواتین اپنے کام شروع کرنا چاہتی ہیں، بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں، انٹرپرینورشپ میں آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت ایک انکریجنگ ایک اسٹیپ ہے کہ وہ یہاں آ کے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا، یہاں پہ پرابلمس کو دیکھا اور آپس میں نوٹس کمپیئر کیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہے۔ میں ڈاکٹر سدرا رسول لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے ہوں اور اس لاہور چیمبر آف کامرس میں آج ویمن امپاورمنٹ، انٹرپرینورشپ، چیلنجز، اپرچونٹیز اینڈ پاتھ وے پہ ایک سیمینار ہوا، جس میں تمام لاہور کے بڑے انسٹیٹیوشن، تعلیمی اداروں سے لوگوں نے شرکت کی، ایڈوکیٹس تھے وہاں پہ اور این جی اوز کے کچھ لوگ تھے، جہاں پر یہ بات کی گئی کہ ہاؤ وی کین امپاور آور ویمنس۔ اور یہ اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کو ٹرین کیا جائے تاکہ ہماری عورتیں امپاور ہو سکیں۔ اپنے گھر میں ایک بیٹی، ایک ماں اور ایک بہن کو امپاور کرنے والا مرد ہی اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو بھی امپاورفل بنا سکے گا۔ اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں گے سی بی ڈی پنجاب نے سال 2026 کی پہلی کامیاب نیلامی کا انعقاد کیا۔ سی بی ڈی قائد ڈسٹرکٹ میں واقع 10 کنال کا سی بی ڈی ارینا پلاٹ 50 ملین روپے فی کنال کی مختص کردہ رقم کے ساتھ پیش کیا گیا، جسے پلے ڈیم نے 70.75 ملین روپے فی کنال کے حساب سے حاصل کیا۔ پلاٹ کی مجموعی مالیت قریباً 700.7 ملین روپے رہی ہے۔ اسی طرح این ایس آئی ٹی سٹی ریزیڈینشیا 2 کا 4.9 کنال کا پلاٹ 590.45 ملین روپے میں فروخت ہوا ہے، جبکہ شعیب شفیع نے حاصل کیا ہے۔ نیلامی میں 50 سے زائد بولیاں موصول ہوئیں، جو سی بی ڈی پنجاب کے شفاف اور مسابقتی نظام پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ سی او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کا کہنا تھا کہ 2026 کی پہلی نیلامی سرمایہ کاروں کے غیر متزلزل اعتماد کا ثبوت ہے اور ادارہ لاہور کو علاقائی کاروباری مرکز بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سی او بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کا پرجوش رد عمل ادارے کے پیشہ ورانہ اور شفاف عمل کا مظہر ہے۔ خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے۔ T20 ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ اٹلی نے نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ نیپال کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 123 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ عارف شیخ 27 اور روہت 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اٹلی کے کرسچن نے 3 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ جواب میں اٹلی نے مطلوبہ ہدف 13ویں اوور میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔
बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें भी। तो आपको बताएं, उकाड़ा के इलाके दीपालपुर में निजी फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ है। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गई। दीपालपुर में निजी फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक धमाका हुआ, जो इस कदर शदीद था कि अतराफ में खौफ और हिरास फैल गया। हादसे के नतीजा में 2 नौजवान मौका पर ही जान की बाजी हार गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमें ड्राई वकुआ पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। अफसोसनाक खबर आपको देंगे फाजिलपुर से, जहां ट्रैफिक हादसा पेश आया। राजनपुर से आने वाली लोडर गाड़ी टायर फटने के बायस उलट गई और बादशां आग लग गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाया। जानी नुकसान की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आ सकीं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाई जाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाकयात से बचा जा सके। मंडी बहाउद्दीन में तशद्दुद और इंतहा पसंदी के खात्मे के आलमी दिन के मौका पर पुलिस की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में अंजुमन ताजरान, असातिज़ा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने अमन, रवादारी और भाईचारे के पैगामात पर मुश्तमिल बैनर्स उठा रखे थे। DSP हसनात शाह ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुआशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए नागुज़ीर हैं। और नाज़रीन, वहां मेहड़ में 3 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का बड़ा ऑपरेशन जारी है। छापों के दौरान दर्जनों मुकामात की तलाशी ली गई है, जबकि 15 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SSP दादू का कहना है कि शहीद जवानों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर ही दम दिया जाएगा, जबकि ऑपरेशन DIG हैदराबाद रेंज की निगरानी में जारी है। पनुआकल के करीब मोहम्मदपुर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस को हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब ट्रेन की कई बोगियां अचानक अलग हो गईं। पनुआकल के इलाका मोहम्मदपुर के करीब बिजनेस एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां मरकजी ट्रेन से अलहदा हो गईं, जिसके बाद दर्जनों मुसाफिर रेलवे ट्रैक पर ही फंस गए। मुसाफिरों के मुताबिक रेलवे हुकाम की जानिब से बर वक्त इमदाद या मुतबादिल इंतजामात फराहम नहीं किए गए, जिससे खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासिरा मुसाफिरों ने फौरी नोटिस देने और मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा किया है। हरीपुर में DPO ने मेन बाजार जामे मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी के दौरान DPO हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर ने वाजे किया है कि जराइम पेशा नासिर, कब्जा माफिया और मंशियात फरोशों की हरीपुर में कोई जगह नहीं। उन्होंने बताया कि 25 से 30 मुश्तबा अफराद की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं और किसी को भी शहर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब जंग में रमजान मुबारक के दौरान महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर और DPO की ज़ेर सदारत ताजरों के साथ अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रमजान मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि मार्केट्स में सरकारी निर्खनामे पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जबकि सहूलत बाजारों में अशिया आम मार्केट से कम निर्खों पर दस्तियाब होंगी। और भक्कर में डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर कैदियों और जेल अमले के लिए ईद के मौका पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर में मुनक्किदा तकरीब की मेजबानी जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारिक हमीद मलिक ने की है, जबकि मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर भक्कर एहसान अली जमाली थे। तकरीब के इंतजामात सुपरिटेंडेंट जेल डॉक्टर मोहम्मद सदीक गुल ने किए। इस मौका पर कैदियों में पंखे तकसीम किए गए ताकि गर्मी के मौसम में सहूलत फराहम की जा सके। टंडोवाला यार्ड में बैनुल अक़वामी दिन बराए इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मौका पर तालुका झड्डू मरी के मुख्तलिफ स्कूल्स की जानिब से आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर तालुका एजुकेशन ऑफिसर आफ्ताब अली शाह और दीगर असातिज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तालीम इंतहा पसंदी के खात्मे और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर का सबसे मौसर जरिया है। दादू में सिंध बैंक के जरिए घर तामीर सब्सिडी हासिल करने के लिए आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सिंध बैंक दादू शाख में काउंटर्स और अमला कम होने के बायस कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर इजाफी काउंटर्स, टोकन सिस्टम और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि मुस्तहिक अफराद को रिलीफ मिल सके। आपको बताएं कि मुस्तहिक अफराद को रिलीफ मिल सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इजाफी काउंटर्स, टोकन सिस्टम और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं।
दूसरी जानिब मुस्तफाबाद के मारूफ समाजी मजहबी और रूहानी रहनुमा मोहतरम जनाब कारी इलियास कादरी अलमरूफ बाबा जी सरकार इंतकाल कर गए। मुस्तफाबाद की मारूफ रूहानी और समाजी शख्सियत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास कादरी अलमरूफ बाबा जी सरकार के अचानक इंतकाल पर पूरा इलाका सोग में है। उनकी नमाज जनाजा मदरसा फैजान पंचतन पाक में अदा की गई, जहां हजारों मुरीदैन, अकीदतमंदों और शहरियों ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।